Sir. Yes, sir, Good yes. afternoon, sir. Chale, all right. A very good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. All right, as we meet together yet again virtually for our next session on financial management, I welcome all of you in this class. आज हमारा जो टॉपिक होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करा और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एनालिसिस टेक्निक्स को भी समझने की कोशिश की, जो सबसे इम्पोर्टेंट और यू कैन से द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस जो टेक्निक है, दैट इज रेशियो एनालिसिस, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी. आज हम लोग आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा और आगे चलेंगे एंड विल ट्राई टू गेट टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन एंड द डिटेल्स ऑफ स्टॉक मार्केट. आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज अ स्टॉक मार्केट एंड हाउ डू थिंग्स शेप in a stock market, how do things actually work out in a stock market, और किस तरीके से as an investor, as an individual, what do we do in the markets and what do markets return to us in response to our actions. तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज. तो बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए let us straight away get on to the basic theme of today's lecture. स्टॉक मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं या स्टॉक मार्केट एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में टर्म यही लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट एनालिसिस, तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर जाने से पहले we'll just invest a little bit of a time in trying to understand what actually a stock market means. तो जब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक मार्केट से हमारा आशय क्या है और what does a stock market means, तो very simple definition of a stock market can be that a stock market is a collection or an aggregation of exchanges or stock exchanges which aim at buying, selling and issuance of securities of companies that are available for being publicly traded. यानी आसान भाषा में अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है या एक स्टॉक एक्सचेंजेस का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा एग्रीगेशन है जिसके माध्यम से हम लोग उन सभी पब्लिक कंपनीज की, उन सभी ऐसी कंपनीज की जिनके शेयर्स पब्लिक में आम जनता के लिए ट्रेडिंग हेतु उपलब्ध हैं, ऐसी कंपनीज के शेयर्स को या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं या फिर उनको इशू किया जाता है. Can everyone hear me out? Yes, sir. Yes. All right. Yes, I think due to some technical glitch, the call ended for a bit of a time. Okay, nothing to worry. So we'll carry on with the same thing. Stock market, जैसा मैंने आपको बताया कि is actually nothing but a collection or aggregation of stock exchanges which facilitate buying, selling and issuance of securities of companies that are available for trading in public domain. तो आप सभी इस चीज से वाकिफ हैं, इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की इंडिया में बात करते हैं तो ऑल्दो हमारे पास, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सचेंजेस, तो हमारे इंडिया में आज की तारीख में देयर आर 23 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, हर स्टेट में एक है, और हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आपके कानपुर में ही है. तो देयर आर डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस दैट आर
that have been established by government of India throughout the country. लेकिन हमारे पास जो दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और यू कैन से those two stock exchanges which have heavy amount or you can say heavy trading volume, they are number one the Bombay Stock Exchange and number two the National Stock Exchange. A Bombay Stock Exchange, which is the oldest stock exchange in India, was established on 9th of July 1875. So you can imagine more than 100 years of existence. This is the oldest stock exchange in India. I am repeating it once again for you, which was established on 9th of July 1875. And today, as we are talking with each other, the market capitalization of Bombay Stock Exchange is around 276.71 lakh crores, which is something around 3.4 or you can say, yeah, I think 3.7, probably 3.7 trillion US dollars. This is the market capitalization. Now I'm not going to get into the fine details of explaining all of you what is market capitalization, because I hope that being pre-PhD class students, you are very much aware of the concept of market capitalization. So the market capitalization of Bombay Stock Exchange is around 3.7 trillion US dollars. Established, as I said, in the year 1875, and till date 5,439 companies are listed on Bombay Stock Exchange and are being and their shares are being regularly traded on a daily basis. तो बहुत ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हो, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी, टाइम पीरियड वाइज भी, और नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड वाइज भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हेडक्वार्टर मुंबई में। और जो दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर आपसे बात करूं या मार्केट कैपिटलाइजेशन की आपसे बात करूं, तो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा सा ही कम है। हालांकि ये स्टैब्लिश काफी बाद में हुआ है, इट वाज स्टैब्लिश इन द ईयर 1992, and at till date the number of listings in National Stock Exchange is 2002 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और उनके शेयर्स की ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा इसका भी जो हेडक्वार्टर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी, वो मुंबई में ही है। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है हमारे लिए जब हम लोग ये कहते हैं दैट मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो there is a reason behind it that the entire stock market related operations and functions actually take place in Mumbai. And stock market, as we all know, एक हम लोग बड़ी popular line use करते हैं, that stock market gives you you can say gives you a clear cut or a sneak peek view of the Indian economy. Stock market के बारे में हम कहते हैं कि it is the pulse of the Indian economy. Why do we say that it is the pulse of the Indian economy? The simple reason being that if you have to understand the status of the Indian economy, the current status of the Indian economy, or what is the level of strength or what is the level of weakness that is currently persisting into the Indian economy, if you need to get a fundamental view of this, the basic thing that you can do for checking this out is you can take a view as to what is the status of the stock market. तो ये जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स, जिसको कि हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, उसको शॉर्ट में सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड and this sensitivity index or sensex is constituted of the 30 topmost companies, 30 topmost companies listed on the on the Bombay Stock Exchange, and these 30 companies are decided on the basis of market capitalization of these companies. तो जो topmost 30 companies on the basis of market capitalization है, they form the part of Sensex, और ये जो Sensex है वही benchmark index है Bombay Stock Exchange का। Similarly, when we talk of the National Stock Exchange, so the benchmark index of the National Stock Exchange is Nifty, or Nifty is a constituent. Nifty actually constitutes
the topmost 50 companies, 50 companies, same like BSE on the basis of market capitalization. The top 50 companies on the basis of market capitalization are constituted under Nifty. तो ये सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों के अंदर अगर आप देखते हैं मंडे टू फ्राइडे जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग विंडो खुलता है सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, उस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर लगातार किसी दिन तेजी होती है, किसी दिन मंदी होती है, और उसी के आधार पर ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसके अंदर कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, दैट इज एंटायरली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ the constituent companies which are a part of these indexes. So if majority of the 30 companies are on the higher side on any given particular day, then Sensex will end up in what we call in the stock market as the Sensex will definitely end up with a green signal. Or agar the majority of the companies under Sensex end up on the lower side, then definitely the markets will end up in red colors, नुकसान के साथ. तो ये हमारा एक सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है. तो इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, बट बिफोर दैट the stock market, what the point that I am trying to emphasize today is that the stock market is basically, or you can say the stock market fundamentally depends upon one thing or one most important element that comes in from its investors, and that is investment. Investors commit a certain amount of money that they have in their possession. They commit that money into the stock market, which becomes their investment. So today our lecture will be majorly focused upon what is investment, how does investment comes into the market, and what are the different elements or what are the different factors that are associated with investment of money that takes place from investors, and how does this investment can be regulated in a manner by which it can serve the better interest for us as an investors. So we'll be majorly trying to understand these things. तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट शब्द की बात करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसकी जो एक डेफिनेशन, जो एक एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, the definition of investment that we have been taught or probably is very much known to us is that investment is an economic activity which involves creation of assets or exchange of assets with a profit motive. It is a very simple, very concise and very to the point definition of investment, that investment is an economic activity. Obviously it is an economic activity because it involves flow of money, which involves creation of assets. Either you create any new financial asset, or exchange of assets, or you exchange assets, you transfer assets, the assets gets transferred from one investor to another, one class of investor to another class of investors with a profit motive. So that is definitely a very major point and a very understandable point, that every investment that you make in the market is genuinely and definitely with one single-handed motive, that is to earn something out of that investment. So that again is definitely going to be there. तो ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है. एक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन हैव. लेकिन जो एक दूसरा पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का मैं आपको देना चाहता हूं यहां पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर, दैट इज that investment is a process of sacrificing something now for the prospect of gaining something later. ये भी एक डेफिनेशन है, थोड़ी सी आप कह सकते हो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन ये हो सकती है, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, this is a very you can say a very understandable and a very easy definition of investment, which is
that investment is a process of sacrificing something now for the prospect of gaining something in future. So what do we sacrifice? We sacrifice the current money that we have right now, the money that we have in our possession right now. We sacrifice that money. You all have understood the concept. You all have read the concept of opportunity cost in the past. So we forego some other opportunity in we sacrifice on some other opportunity in order to invest that amount, in order to put that amount into the stock market with the prospect of gaining something in future. इस आशा के साथ, इस भावना के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमको भविष्य में इससे कुछ बेहतर रिटर्न्स प्राप्त होंगे. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी कंसाइज डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है हमारे आपके जैसा, वो इसी भावना के साथ, वो कहीं ना कहीं अपने कुछ एक्सपेंडिचर्स को, कुछ अपने सेविंग्स के जो उसके दूसरे एवेन्यूज हैं उनको काट कर, उनको सैक्रिफाइस करके वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, इस भावना के साथ, इस आशा के साथ दैट ही विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट इन फ्यूचर. तो दिस डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली outlines three most important characteristics or three most important features of investment. Number one being, or you can say the most important elements of investment. The number one being that investment is subject to time. Time is the most important element which impacts the value of your investment. You can invest for a short period of time, you can invest for a long period of time. अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग सामान्य स्टॉक मार्केट की भाषा में उसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं. व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक्स, इट मींस दैट यू आर नॉट देयर और यू आर नॉट पुटिंग मनी कीपिंग इन व्यू अ लॉन्गर टाइम होराइजन. यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ शॉर्टर टाइम होराइजन ओनली टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द नॉमिनल प्राइस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स एंड स्क्रिप्ट्स. लेकिन जब हम लोग लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के साथ वी इन्वेस्ट, व्हेन वी इन्वेस्ट इनटू द मार्केट्स विद अ लॉन्गर टर्म टाइम पर्सपेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट कैपिटल एप्रिसिएशन. So you need to understand these two very basic points, that when you invest into the stock markets with a short time duration in mind, your basic idea is to gain from nominal price movements taking place in the price of stocks. And when you invest into the markets with a long-term horizon, your basic idea in this situation is to attain capital appreciation and to get or to reap huge amounts of profits after a long period of time, say 5 to 10 years. So that is the basic idea behind our investment. So time एक पहला सबसे important element है. The second element that is involved in investment in stock market is today's sacrifice, the sacrifice that we are making today. Now again comes the concept of opportunity cost. You are foregoing some other investment alternative, you are foregoing some other investment avenue in order to invest this amount of money in the stock market. Now in future, you never know that the opportunity that you have left out today may be more, may appear or may result in being more profitable in future in comparison to the current investment that you are making. But the fact remains that whenever we invest in the stock market, as I said, we invest with the prospect of gaining something later. So right now, because we can see that a stock market investment can be more profitable for us in say 3 to 5 years, that is why we are letting go of some other investment alternative. तो हमको क्योंकि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाभकारी दिख रहा है, इस वजह से हम किसी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को सैक्रिफाइस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. तो टुडेज सैक्रिफाइस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट. एंड द थर्ड एंड द लास्ट एलिमेंट इज प्रोस्पेक्टिव गेन. What is the gain that we are looking at? What is the future profit that we are looking at? What percentage of profit we are expecting to make out of our investment into the stock market in near future? That is the prospective gain. और ये भी हमारे investment in stock market को determine करता है. तो the three elements or the three basic features
of a stock market investment is number one, time, number two, today's sacrifice that we are making, and number three, the prospective gain that we expect we will be getting in future. तो अभी तो ये हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट की बात करी, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक टर्मिनोलॉजी है that is so broad that there are multiple definitions, multiple viewpoints about investment. Now, if you talk from an economist, he would tell you a different perspective of investment. If you talk from a businessman, if you talk from an entrepreneur, he will tell you a different concept of investment. And if you talk from a retail investor, if you talk from a simple investor, he will tell you a different viewpoint on investment. So on the basis of this, we can classify the idea of investment into three categories. Number one is economic investment, number two is business investment, and number three is financial investment. So what is an economic investment? Let us start with the first one. What is an economic investment? An economic investment basically is that investment, as I said, which is an economist's viewpoint. एक अर्थशास्त्री का जो विचारधारा है, एक अर्थशास्त्री की जो विचारधारा है, उसके हिसाब से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करें, तो अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट, the idea of investment that they have is investment is something which accelerates the process of economic well-being through production of more goods. Economics में कहा जाता है that investment is that process which accelerates, which accelerates what? Which accelerates the economic well-being of the people by producing more goods. तो कोई भी ऐसी चीज को इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसके माध्यम से जो जनमानस है, जो लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करके, इसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं इकोनॉमिक्स में. Now coming to the second perspective, that was economic investment. Now coming to business investment. Now if you talk from an entrepreneur, he would say that the amount of money which he invests initially into a business in order to initiate it or to start its operations in the market, that is a business investment. So for an entrepreneur, investment is वो पैसा जो कि वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस की शुरुआत में, ताकि बिजनेस को ऑपरेशनलाइज किया जा सके, फंक्शनलाइज किया जा सके, बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके. दैट इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट. And the third idea of investment is financial investment. हमारे आपके जैसे लोग who invest in stock markets, who invest in stocks which may be either carrying a low risk or a high degree of risk with a view to earn some gain over a certain period of time, that is financial investment. तो हमारे आपके जैसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में विभिन्न स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इस इंटेंट के साथ कि हम एक निश्चित समय सीमा की पूर्ति हो जाने के उपरांत उसमें से कुछ लाभ अर्जित कर सकेंगे, दैट इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. और यही है वो सिंपल इन्वेस्टमेंट का आइडिया जो कि हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं. अब इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट हेडिंग हमको जिसको कवर करना है, दैट इज टू टर्मिनोलॉजीज जिनके बीच में डिफरेंस को समझना बड़ा अनिवार्य होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन. आप सभी दोनों शब्दों से परिचित हैं. स्पेक्यूलेशन भी ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. तो इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन कई बार अगर आप एक सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे भारत के अंदर, इवन इफ यू गो टू एनी particular person in India who does not invest in stock market, if you ask him what is their idea about a stock market, they would say stock market is plain speculation. So those who do not know about the details, about the fine details of the stock market or about how actually the trading setup in a stock market works, if you ask such people, they would say that stock market is nothing but plain speculation. Although we being students of commerce and management, we being students of financial management, very clearly and expressly understand that the stock market is not a speculation every time. At certain junctures, at certain point of time, yes, speculation may occur, but for a major period of time,
for an investor who is well read, for an investor who has a particular understanding of the market, he very well understands that markets or investment is very much different from speculation. तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो व्हाट आर द पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन डिफरेंशिएट? नंबर 1 is risk. Risk is that important factor through which we can primarily differentiate investment from speculation. Risk is something, let me first start off by telling all of you that risk is that one factor which is always going to be there. हम लोग कॉमर्स की दुनिया में कहते हैं रिस्क इज ऑल परवेसिव. किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए, रिस्क तो रहना ही रहना है वहां पर. But when you have to demarcate or when you have to differentiate your investment on the basis of whether they are investment or speculation, you can say that when you are investing your money after careful analysis and study into any stock, the level of risk is always low. I'm not saying that risk is not going to be there. I've very clearly stated this thing right at the very outset that risk is always going to be there. What you can do is you can regulate the level of risk, the quantum of risk. You can either raise the level of risk or you can lower down the level of risk. So when it comes to investment, the level of risk will always be lower. But when it comes to speculation, the level of risk will always be on the higher side. So the amount of money that you are putting in case of investment, you have lesser chances of that money getting wiped out or that money getting lost. But when it comes to speculation, there are greater chances that your money might be wiped out or your money might be lost in the stock market. So that thing can be there. The second important element through which we can differentiate between. Did someone speak in between? Yes. हाँ शिवम सर, एक्चुअली एक मैसेज रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स को देना है. जी जी. शिवम सर एक्चुअली बच्चों से बता दीजिए, सारे बच्चे भी ऑनलाइन हैं. कल एक वनडे का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, जिसकी थीम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज की, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की, डॉक्टर नियति पाड़ी मैम फ्रॉम जेएनयू. तो कल उनका सेशन रहेगा. रजिस्ट्रेशन बच्चे कर सकते हैं और उनको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाएगा. आपके कॉमर्स से कुछ बच्चों का अभी कॉल आया था, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं. तो जिनको अगर लिंक नहीं क्रिएट हो पा रहा है वहां से नहीं, तो मुझे फोन कर लें, तो मैं उनको बता दूंगा. जो वहां के कन्वीनर होंगे आप उनसे बात कर लीजिए और कल का अपना वो ज्वाइन कर सकते हैं अपना फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है. तो जो भी प्रॉब्लम है रिसर्च की, आप वहां पर सुन सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. Okay, thank you. Right, so I think all the students have already heard this. So whatever your sir said, you can do the needful and get registered for this FDP and get benefit from it. तो अब हम लोग आगे चलेंगे and we'll try. The first thing that we were talking about was the risk factor. The second thing is capital gain. जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, we invest in the stock market with the intent of capital appreciation. We put our money in the stock market in the form of investment for a longer perspective. इन्वेस्टमेंट हमेशा एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है. आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, छोटी अवधि के लिए जब हम लोग पैसा कहीं पर भी लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसे हम लोग निवेश, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसे हम लोग ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन का नाम देते हैं. तो कैपिटल गेन्स की जहां तक बात की जाती है, तो कैपिटल गेन्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपको तभी मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें. स्पेकुलेशन करने से आप केवल प्राइस लेवल चेंजेस, जो छोटे छोटे प्राइस लेवल चेंजेस डे टू डे बेसिस पे होंगे, यू कैन ओनली टेक एडवांटेज ऑफ दोस प्राइस लेवल चेंजेस एंड यू कैन ओनली गेट शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम द मार्केट. लॉन्ग टर्म गेन्स आर नॉट पॉसिबल अंडर स्पेकुलेशन. और तीसरी चीज होती है टाइम, जिसके बारे में मैंने बार बार आपसे बात कही, दैट इज
investment is always done into the stock markets with a long term time horizon, whereas speculation or speculative activities in the stock market are done in the markets keeping into mind the short term टाइम ड्यूरेशन. लॉन्ग टर्म में आप स्पेकुलेशन नहीं करते. इसके बाद हमारे साथ जल्दी से एक अलग नया जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. व्हाई डू पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स? तो बड़े आसान से ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1 है इनकम, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है. एवरीवन इन्वेस्ट्स his money or her money into the stock market with the basic intent, with the basic objective, with the basic idea of earning income in the form of dividend or yield or interest. Number 2, capital appreciation. Capital appreciation का जो दूसरा उद्देश्य है, जिसकी वजह से लोग, जिस उद्देश्य के साथ लोग कैपिटल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. अभी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है ये 3 तरीके से हो सकता है. पहला होता है कंजर्वेटिव ग्रोथ. Now when you are looking for conservative growth, you will try to frame a portfolio, you will try to make a portfolio that will make money over the long term by capital appreciation and by building. Capital appreciation means what? Capital appreciation means building wealth over a period of time. एक लंबे कालखंड में, एक लंबे समय की अवधि में वेल्थ को बिल्ड करना. दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर कंजर्वेटिव ग्रोथ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर कंजर्वेटिव कैपिटल एप्रिसिएशन, you will make a portfolio under which you will invest money over a very very long period of time in order to build a considerable degree of wealth in the markets. दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, दैट इज एग्रेसिव ग्रोथ या एग्रेसिव कैपिटल एप्रिसिएशन. यहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक के लिए हम यहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे और एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे. Now what is an aggressive stock in the stock market? Aggressive stocks basically are those stocks in the which are basically those stocks whose trading in the stock market takes place with a large degree of volume on a daily basis. यानी ऐसे स्टॉक्स जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेसिस पे काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है जिनके प्राइसेस में, ऐसे स्टॉक्स को हम एग्रेसिव स्टॉक्स कहते हैं. और इनमें इन्वेस्ट करके जब आप लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज एग्रेसिव कैपिटल एप्रिसिएशन. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन इज स्पेक्यूलेशन, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और जहां पर हम लोग छोटे छोटे प्राइस लेवल चेंजेस से ही लाभ उठाने का प्रयास करते हैं. तो कैपिटल एप्रिसिएशन कैन टेक प्लेस इन 3 ways. नंबर 1 इज कंजर्वेटिव ग्रोथ, जहां पर बहुत लंबे समय के लिए हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ बिल्ड करने के लिए. द नंबर 2 इज एग्रेसिव ग्रोथ, वेयर वी इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म टू अ मीडियम टर्म टाइम ड्यूरेशन, विद अ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टाइम ड्यूरेशन. और नंबर 3 इज स्पेक्यूलेशन, वेयर वी इन्वेस्ट फॉर अ from a short to a very short time perspective, and we try to take advantage of price level changes taking place on a daily basis. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, that is safety and security of funds. When we talk of an Indian investor, when we talk about the psychology of an Indian investor, he majorly invests his funds in the stock market with the basic theme in his mind or regarding safety and security of his funds. So the reason why a lot of people, a lot of individuals with high net worth still cease to put their money in the stock markets, the basic and the fundamental reason behind it is safety and security of investment related issues. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट केवल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके इश्यूज हैं विद रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स. ऑल्दो वी एज स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, वी एज स्कॉलर्स ऑफ कॉमर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ यू invest into stocks of companies after careful and cautious research and analysis, there are very bleak chances of you losing your money in the stock markets. There are very less chances of you burning your fingers in the stock market. लेकिन
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, इसी वजह से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स एक और ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है, दैट इज रिस्क। तो पीपल आल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स इन ऑर्डर टू टेक a little bit higher amount of risk in the markets, because we know that when you raise the level of risk, your prospects of earning profits also rise. Higher the risk, higher the possibility of getting better returns. एक और ऑब्जेक्टिव जिसके साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज लिक्विडिटी। तो स्टॉक मार्केट, एज वी ऑल नो, इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट विच इज हाईली लिक्विड. You can easily turn your investment into cash in a very small period of time, in a very less period of time. So liquidity is another very important and a very significant objective because of which people invest in stock market. And another or last objective is tax considerations. So in order to you can say before making the investments, the investor must take into consideration the tax issues or tax related objective, must consider the tax related objectives, because there are short term capital gain tax, there are long term capital gains tax. So tax is also another important element that must be kept in mind before putting or investing money in the stock markets. अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या है, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास कौन कौन से साधन है, कौन कौन से रास्ते हैं अपने मनी को इन्वेस्ट करने के। तो हमारे पास होते हैं सबसे पहले तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स are those where the individuals make their own choices and make their own choice and takes his investment decisions on his own. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास वो साधन है जिनमें एक इन्वेस्टर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्वयं लेता है और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्वयं ही कंट्रोल करता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से रास्ते होते हैं, एक तो है फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे कि हमारा सेविंग सर्टिफिकेट्स, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, ये जो है हमारे फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज हियर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द मैच्योरिटी अमाउंट आर वेरी वेल नोन टू द इन्वेस्टर इन एडवांस। तो जब आप सेविंग बैंक में इन्वेस्ट करते हो या आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, व्हेन यू इन्वेस्ट योर फंड्स, यू आर aware in advance as to what will be the principal amount that you are investing and what will be the amount that you will be receiving at the time of maturity. Both these things are very well known to you right in advance. दूसरे हमारे पास जो फिक्स, ये तो हो गए प्रिंसिपल फिक्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। दूसरे हमारे पास होते हैं वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल फिक्स्ड के उल्टा, जहां पर की प्रिंसिपल अमाउंट इज नोन टू अस but maturity amount is undefined. Maturity amount depends upon how the market dynamics will work out in future. तो यहां पर हमारे जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जैसा कि आप जानते होंगे, those forms of debentures which get converted into equity shares or preference shares after a certain stipulated period of time. तो इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो गए, ये हमारे वेरिएबल प्रिंसिपल इन सिक्योरिटीज। तो इसके और एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है, दैट इज नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स। नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सच एज रियल एस्टेट्स, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सच एज मॉर्गेजेस, सच एज कमोडिटीज, सच एज आर्ट्स, एंटीक्स एंड अदर वैल्यूएबल कमोडिटीज। इनमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है आपके पास। इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जहां पर की इट इज यू कैन से दैट सेगमेंट वेयर इंडिविजुअल्स हैव नो कंट्रोल ओवर द अमाउंट इन्वेस्टेड। जैसा कि हमने पहले वाले में बात करी थी, वहां पर इन्वेस्टर्स के पास वो खुद डिसाइड करते हैं, उनके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने इन्वेस्टमेंट का। जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, हियर इन्वेस्टर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द अमाउंट दैट दे आर इन्वेस्टिंग, एंड
when you as an investor do not have control, then who actually controls it? It is controlled by the particular organization to which you have entrusted to take care of the funds that you have invested. वो ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करती है, उस इन्वेस्टमेंट को आपके, जिसको कि आपने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो आपके उस फंड की टेक केयर करे। तो उसमें इसके क्या उदाहरण है? जैसे पेंशन फंड्स, जैसे प्रोविडेंट फंड्स, जैसे इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस के जो हमारा अमाउंट होगा उसके बारे में हमको नहीं पता होता, पेंशन फंड्स के बारे में, प्रोविडेंट फंड्स में यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं करते अपने इन्वेस्टमेंट को, बल्कि सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, या गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एजेंसीज उसके इंटरेस्ट रेट्स और हमारे अल्टीमेट रिटर्न्स को दे एक्चुअली कंट्रोल दोस थिंग्स। तो ये हमारी बात हुई। अब इसके बाद हम लोग बहुत समय, अब क्योंकि वैसे चाहें तो अब यहाँ पर हम आपको फिर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब के बारे में बताएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सभी चीजें आप जानते हैं, ये हमें बीकॉम एमकॉम लेवल पे काफी डिटेल में समझाई जाती हैं। तो आई विल नॉट get into that discourse of actually making you understand what is an equity share, what are the advantages, disadvantages, features. I think all these, I'm taking this for granted that all these things are very well known to all of you. तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर ही केवल चर्चा करेंगे। Now let us get to the next heading, that is features of an ideal investment program. जो एक सबसे आदर्श इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, एक आदर्श इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। What are the important features of it? नंबर 1, as I said, जो प्राइमरी कंसिडरेशन है दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी सबसे पहले बहुत जरूरी है। हमें ज्यादातर इसीलिए कहा जाता है ऐसी कंपनीज के ही अंदर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर सेफ्टी ऑफ फंड्स सबसे पहले है। इसीलिए एक शब्द स्टॉक मार्केट्स में प्रयोग होता है, सब मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, हो सकता है आप में से किसी को पता हो, ब्लू चिप कंपनीज। किसी को पता है, किसी ने सुना है ये शब्द? व्हाट आर ब्लू चिप कंपनीज? कोई अगर बताना चाहे। फेमस कंपनियां होती हैं ब्लू चिप कंपनी, उनके शेयर्स मार्केट फेमस कंपनियां होती हैं। फेमस, चलिए फेमस तो बहुत कुछ हो सकता है, आपका एक आइडिया मतलब ठीक है, लेकिन ब्लू चिप कंपनीज हम लोग ऐसी कंपनीज को कहते हैं विच आर हाई, किसी ने लिखा है हाईएस्ट गेनर कंपनीज, चलिए अच्छी बात है। ब्लू चिप कंपनीज आर बेसिकली दोज कंपनीज विच हैव predefined and a registered background, which have been working in the markets for a very long period of time, and which have been posting good and profitable results for over a period of time, and which have a high market capitalization in the market. तो जो अभी आप किसी ने एक वर्ड यूज किया फेमस कंपनीज, तो फेमस कंपनीज को ही मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट यहाँ पर कर दिया। और ब्लू चिप कंपनीज हम लोग ऐसी कंपनीज को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होती है, जिनकी जो एक बहुत लंबे समय से मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, और जिन कंपनीज का एक रजिस्टर्ड हिस्ट्री है, एक इतिहास है उनका, और जिन कंपनीज को अच्छे लोग चला रहे हैं, प्रमोटर्स जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कंपनीज आर रन बाय देयर प्रमोटर्स, and the basic idea about a public limited company is that a public limited company is as good as its promoters. जितने अच्छे उसके प्रमोटर्स हैं उतनी अच्छी वो कंपनी मानी जाती है। तो आज हम लोग अगर कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ब्लू चिप कंपनी है, तो क्यों है? क्योंकि उसके प्रमोटर मुकेश अंबानी है, क्योंकि उसके प्रमोटर की एक अच्छा बैकग्राउंड है, उसके प्रमोटर की एक बहुत रिच हिस्ट्री है, उसके प्रमोटर की एक बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री एक ब्लू चिप कंपनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं आपको? यस सर। तो ये जो ऐसी कंपनीज को जब हम एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमें सबसे पहले सेफ्टी अगर हमारा कंसिडरेशन है, तो हमें हमेशा ऐसी कंपनीज को ही में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ब्लू चिप कंपनीज हैं, और वो कंपनीज के अंदर रिटर्न्स भले बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन सेफ्टी ऑफ फंड्स इंश्योर की जा सकती है। दूसरा जो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का एलिमेंट होता है दैट इज लिक्विडिटी। तो द पेस एट विच, द स्पीड एट विच यू कैन कन्वर्ट योर ट्रांजैक्शंस इनटू कैश, दैट is what liquidity actually means.
and stock market have a proven track record of being that investment avenue which provides one of the highest degrees of liquidity in the equity market. सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर आपको मिल सकती है किसी फॉर्म ऑफ मार्केट में, तो उसमें इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट जरूर होता है। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, दैट इज रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तो हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को हमेशा निर्माण करना चाहिए जहां से कि हमको इनकम जो है वो रेगुलरली मिलती रहे और स्टेबल तरीके से मिलती रहे, यानी कि महीना दर महीना हमको इनकम मिले और एक निश्चित अमाउंट हमको हर महीना मिले। इसको हम लोग रेगुलरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये भी एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में जरूर कंसीडर करना चाहिए। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ परचेजिंग पावर। तो इन्वेस्टर्स शुड बैलेंस देयर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड्स ऑफ परचेजिंग पावर इनस्टेबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है ये, दैट while determining or while creating an investment program as an investor, you must always make sure that your portfolio, your investment remains immune to inflation or inflationary tendencies. इन्फ्लेशन के घटने और बढ़ने की वजह से आपके पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट न पड़े, ऐसे पोर्टफोलियो को हमेशा बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एक और कंसिडरेशन, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो वी मस्ट लुक फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसा इसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you must be able to build a considerable amount of wealth from your investment। ये कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। इसके बाद टैक्स बेनिफिट्स। तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाने के लिए यू मस्ट ऑलवेज कंसिडर टैक्स बेनिफिट्स एंड मस्ट ऑलवेज हैव any such policy or any such scheme in your portfolio which provides you tax benefits। फिर उसके बाद बात आती है लीगैलिटी। लीगैलिटी हमेशा ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करना चाहिए जो कि लीगल हो। किसी भी प्रकार के किसी इलीगल या भ्रामक इल्यूजनरी जानकारी के आधार पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कंसीलेबिलिटी की, कंसील, छुपाना। तो इन्वेस्टमेंट जब भी आप स्टॉक मार्केट में या कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जब आप अपने बनाएं, तो वी मस्ट ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन दैट हम वहीं पर इन्वेस्ट करें, उसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करें जो कि हमारी निवेश से जुड़ी हुई जानकारियों को कंसील करके रखे, छुपा कर रखे, डिस्क्लोज ना करे कहीं पर। और लास्ट थिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज tangibility। We must as an investor always prefer to keep a part of our money invested in tangible securities like buildings, like machinery, like real estate। हमको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इस तरीके का बनाना चाहिए जिसमें कि हम इस चीज को भी सुनिश्चित करें कि सारा पैसा सिर्फ एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में या एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में ही न लगा हो। Range of investment options, range of investment alternatives must be considered while investing money in the stock market। और यही से हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है जिसके बारे में हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। Diversification of investment, diversification of portfolio is the most basic and the most significant and you can say the evergreen policy that will significant policy for any investor whenever he has to invest in the stock market। तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डील करेंगे, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, उस पर इंपैक्ट डालते हैं। नंबर 1, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द actual amount that we are planning to invest in the stock market majorly has a major effect on our investment decisions। जो जिनके पास थोड़ा पैसा है
उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिफरेंट होंगे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ दोज हु हैव large amount of money at their disposal to invest in the stock markets. दूसरा आता है हमारे पास पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को तय करें. एंड आई एम टेलिंग यू दैट 50 to 60% of our retail investors in the equity market, they actually lose their money in the markets simply because of the fact that they do not have their clear cut objectives before investing in the equity market. तो मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव को तय करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप अपने बिना ऑब्जेक्टिव्स को तय किए हुए मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट कमाने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है. इसके बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. हम किस प्रकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इक्विटी मार्केट की ही बात अगर कर ली जाए तो हमने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर 3 तरीके से भी मेजरली कैटेगराइज कंपनीज: लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज. तो there is a certain class of investors which normally invests only in large cap companies. Large cap companies are the reputed companies in the market. Large cap companies are the companies which have, as I said, are high market capitalization companies and are relatively safer investment avenues. Mid cap companies are having medium sized capital companies. These are such companies which work in the stock market and have a considerable degree of risk. Large cap companies have a very low degree of risk. Mid cap companies have a considerable degree of risk. And then we have the small cap companies, which are which constitutes those companies which work on small scale and have a very high degree of risk. तो हम किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं वो भी हमारे लिए तय करना जरूरी होता है. Then the fourth and the last factor affecting investment decision is timing of purchase. As I have already pointed this point before you, or if I haven't pointed it out, then I'm pointing it today in front of you, that stock market decisions are entirely based on timing. Timing, I am telling you, is the most important factor, is the most significant factor which determines which investor will ultimately get higher returns in the market and which investor will have to satisfy himself with paltry returns. कौन से इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा मार्केट में और कौन सा इन्वेस्टर कुछ छोटे लाभ के साथ ही जिसको संतोष करना पड़ेगा और किस इन्वेस्टर को बिल्कुल लाभ नहीं होगा मार्केट में, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा. ये सारा खेल जो है that is entirely dependent upon the timing of purchase. आप किस समय पे परचेज कर रहे हो. अब जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको आज के ही समय में मैं ले लूं. अभी हम लोग देख रहे हैं कि विगत एक हफ्ते से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उस वॉर की वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैव फेल. There has been large amount of losses which have been booked by retail investors in the markets all over the globe because of the Russia-Ukraine conflict that is persisting. And still we have no clear-cut idea as to how long this war or war-like situation is going to persist. We have no clear-cut idea about this right now. But even under such circumstances, markets all around the world are functioning. Indian equity markets are also functioning. Now, there are days when we are seeing that your benchmark index of Bombay Stock Exchange, that is Sensex, is either falling around 1,000 points or on certain days is seeing a rise of 1,000 points. So there is high level of volatility into the markets, in the markets right now. So under such circumstances, as an investor, what is the correct time at which we have to enter? Is this the correct time to enter in the stock markets? Or is this not the right time to invest into the markets? And all we need to do is to just sit back and take a look at how things actually pan out in future. And on the basis of that, we decide when to invest in the markets. So this is the kind of decision that every investor, this is an investment scenario that every investor has to go through. And this is one such classic situation.
I'm again trying to explain this same example to all of you, that this war-like situation is continuing. Now, if I ask you, I don't know how many of you invest in the stock markets, but if you invest in the stock markets, I would like to know your viewpoint, that according to you, this situation that is right now engulfing the market is engulfed by this kind of situation, this kind of war-like situation, where there is high level of uncertainty, high level of volatility in the markets. Do you think that this is the right time to purchase stocks, or do you think that still we must just sit back and wait for the right time to come and then decide to invest? क्या लगता है आपको? कोई भी जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हो या मार्केट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो. सर वी शुड वेट. हाँ? सर हमें वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है मार्केट में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारी मतलब ज्यादा लॉसेस को हम रिकवर कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी वेट करना चाहिए. चलिए, अच्छी बात है. तो ये भाई साहब का देखिए, इनका व्यू पॉइंट है. इनका कहना ये है कि क्योंकि अभी हमको सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं, तो अभी हमको वेट करना चाहिए. अच्छी बात है, इनकी अच्छी बात है. मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग होंगे आप में से, दे आर ऑफ दिस व्यू पॉइंट दैट the current scenario that is persistent in the markets right now is giving a very clear cut indication to investors that we must wait, although someone is of the view that abhi humko yahan par invest karna chahiye. तो this is how market actually functions. अब देखिए, एक कह रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए. तो this is how market works. My basic idea of putting this question in front of you right now was to actually prove this thing to you that this is how equity market works. अगर सारे लोग आशीष कुमार जी की तरीके से ये सोच लें कि हमको अभी वेट करना चाहिए और अभी बचना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब तो मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही बंद हो जाएंगी. मार्क सेंसेक्स और निफ्टी जहां पर है वो तो उसी जगह कांस्टेंट हो जाएगा. तो ऐसे में ऐसे में किसी एक महोदय ने मैसेज किया अभी अचानक से, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए. तो एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि आशीष कुमार जी की तरीके से हैं, जिनका मानना है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, और एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन भाई साहब की तरीके से हैं जिन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट देयर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स इन एनी सिचुएशन. इन एवरी सिचुएशन देयर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स दैट आर प्रिवेलेंट in the markets, and these multiple viewpoints propel investors to either invest in the stock markets at a particular point of time, or to refrain from investment at a particular point of time. मेरा व्यू पॉइंट अगर आप पूछेंगे तो मैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में बराबर इन्वेस्ट करता रहता हूं, तो मेरी क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि मैं, जैसा मैंने भी ब्लू चिप्स के बारे में आपसे बात की, मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो इक्विटी मार्केट में आई ऑलवेज ट्राई टू make, which is a careful and cautious combination of large cap, mid cap and small cap stocks. तो क्योंकि मैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें करने के बाद, because I invest in the market with a very long term perspective, and because I invest in the markets with a very long term perspective, so definitely for a person like me, I can say that I am still currently investing in the stock market. मैं अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूं मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है. बट द थिंग इज, व्हाट इज द अप्रोच विद विच, जो कर रहे हैं निवेश, वो किस अप्रोच से कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So viewpoints are multiple in the stock markets, and these multiple viewpoints ultimately provide a definite size and shape to the stock market. So based on your objective, based on your purpose of investment, you have to decide whether you should invest in the market or you should refrain from investing at this point in time. There is no clear cut idea, there is no clear cut thought which can prove that whether any time is right time or wrong time.
इट इज एंटायरली अ फंक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव तय करता है कि कौन सी टाइमिंग अच्छी है, कौन सी टाइमिंग खराब है। न कोई टाइम खराब होता है, न कोई टाइम अच्छा होता है मार्केट। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? अब इस समय अगर आप स्पेक्यूलेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो ये गलत समय है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय भी है। तो दिस इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स इन द स्टॉक मार्केट्स दैट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट। क्लियर हो रही है बात? सर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी मैटर करती है इसके लिए। मेरे को आवाज नहीं क्लियर आ रही है सर। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या अभी आप तैयार हैं कि इतना रिस्क ले सकते हैं? अगर मार्केट फॉल हुई तो उसके लिए भी आप तैयार हैं कि नहीं? देखिए, मैंने आपसे क्या बात बताई, रिस्क तो मार्केट में, रिस्क इज ऑल परवेसिव। आई सेड इट एट द वेरी आउटसेट, रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। मेरा आपसे जो मैंने आपसे अभी बात बताई, दैट व्हेनेवर यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, try to determine first of all what is the time frame and what is the objective with which you are investing। अगर आप आज से 10 साल, 15 साल और 20 साल के कैपिटल एप्रिसिएशन के उद्देश्य के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट और वॉर हैं, ये 10 साल, 15 साल और 25 साल तो नहीं चलने वाले ना। अगर आपको देखना क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और मैं किन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। अगर वो कंपनीज अच्छी हैं, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और आप उनमें 10 साल 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, then definitely this is the right time for you to invest, because markets have seen a lot of correction in the recent times. Lot of huge correction has taken place prices of stocks, in prices of some very good stocks. तो आप उन स्टॉक्स को स्टडी करके थ्रू फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस उन स्टॉक्स को आप निकाल करके वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेशन करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। यस सर, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अभी मतलब उतना बेहतर नहीं है। इंट्राडे, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग की जब आप लोग बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टॉक पिक्स। आपको किस स्टॉक के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट न्यूज पता चल जाए और उस न्यूज का फायदा उठाने के लिए आप प्राइस, उस वही जो मैंने कहा प्राइस लेवल चेंजेस जो थोड़े बहुत होंगे एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, उसका लाभ उठाने के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो कोई भी समय ना अच्छा होता है ना खराब होता है, बिकॉज दैट इज स्टॉक स्पेसिफिक। इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट डन टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, दैट इज डन टू टेक एडवांटेज फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो किस स्टॉक के बारे में कौन सी पॉजिटिव जानकारी किस दिन आ जाए, उस दिन उस जानकारी का लाभ उठाने का काम तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके लिए ना कोई दिन अच्छा ना कोई दिन खराब होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, तो अच्छी कंपनीज के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव लंबे समय में एक लंबी वेल्थ को बिल्ड करने का है, तो मेरे हिसाब से ये समय अच्छा है। लेकिन अगर आपको स्पेक्यूलेशन करना है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आज से 5 या 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को देख रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू एंगेज योर क्लास, बट डे आफ्टर टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, बाय। और मिथिलेश जी, प्लीज आज कोई 1 पीपल इसमें से ग्रुप में से अटेंडेंस शीट जो होती है ना, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीडीएफ बना के सुदेश सर को भेज दीजिएगा।